بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ 90% ہندوؤں کے دماغ میں ایک بات گھر کر گئی ہے کہ قرآن ہندوؤں کو مارنے کا آدیش دیتا ہے۔ جہاں بھی قرآن میں کافر شبد آیا ہے وہ اسپیشلی ہندوؤں کے لیے ہی آیا ہے، اور قرآن کافروں کو قتل کرنے کے لیے کہتا ہے۔ پتہ ہے دوستو ہندو ایسا کیوں سوچتے ہیں؟ قرآن کی ایک آیت کی وجہ سے۔ قرآن کی سورہ توبہ کی آیت نمبر 5 میں لکھا ہے کہ کافروں کو جہاں پاؤ وہیں قتل کر ڈالو۔ اس آیت کی وجہ سے بھارت کا ہندو یہ سوچتا ہے کہ دیکھو قرآن تو صاف صاف کافروں یعنی ہندوؤں کو مارنے کا آدیش دے رہا ہے۔ اس سے تو سپشٹ ہو رہا ہے کہ اسلام آتنکواد کرنا سکھاتا ہے، اسی لیے مسلمان جہاد کرتے ہیں۔ دوستو اس آیت کا کلیریفیکیشن ہم بعد میں دیکھیں گے، پہلے ہم یہ جان لیتے ہیں کہ جہاد کیا ہوتا ہے۔ دنیا کے لگ بھگ 90% غیر مسلمانوں کی یہ سوچ ہے کہ جہاد وہ ہوتا ہے جس میں مسلمان کہیں بھیڑ بھاڑ والے علاقے میں جا کر بم پھوڑے اور اس سے لوگ مر جائیں، یہ جہاد ہوتا ہے اور اس سے مسلمانوں کو جنت ملتی ہے۔ مگر دوستو ایسا نہیں ہے۔ آئیے دیکھتے ہیں جہاد شبد کا مطلب کیا ہوتا ہے۔ جہاد ایک عربی بھاشا کا شبد ہے جس کا مطلب ہوتا ہے پریتن کرنا، محنت کرنا، سنگھرش کرنا یا سٹرگل کرنا۔ جہاد دو پرکار کا ہوتا ہے، جہاد اکبر یعنی بڑا جہاد، اور دوسرا جہاد اصغر یعنی چھوٹا جہاد۔ قرآن اور حدیثوں میں جہاد اکبر اسے کہا گیا ہے جس میں کوئی انسان اپنی بری عادتوں کو، اپنی برائیوں کو ختم کرنے کے لیے سنگھرش کرتا ہے۔ جیسے شراب پینا ہر سماج دھرم میں برا مانا جاتا ہے۔ اب مان لیجئے مجھے شراب پینے کی بہت بری لت ہے، مگر میں اب شراب پینا چھوڑنا چاہتا ہوں، تو اگر میں اپنی شراب پینے کی اس بری عادت کو چھوڑنے کے لیے سنگھرش کرتا ہوں تو اسے جہاد اکبر یعنی بڑا جہاد کہا جاتا ہے۔ دوسرا جہاد اصغر، اس کا مطلب ہوتا ہے سماج میں پھیلی برائیوں کو روکنا۔ مان لیجئے آپ کے محلے میں لوگ بیٹی کے پیدا ہوتے ہی اسے زندہ دفن کر دیتے ہیں، یعنی بیٹی پیدا کرنا نہیں چاہتے۔ آپ خود جانتے ہیں کہ یہ ایک بہت بڑی سماجک برائی ہے۔ تو اب اگر آپ اس سماجک برائی کو اپنے محلے سے ختم کرنے کے لیے سنگھرش کرتے ہیں تو اسے جہاد اصغر کہتے ہیں، یعنی چھوٹا جہاد۔ خود کی برائیوں کو اگر ہم ختم کر دیں گے تو سماج سے سماجک برائیاں اپنے آپ ہی ختم ہو جائیں گی۔ اسی لیے انسان کی خود کی برائیوں کو مٹانا بڑا جہاد ہے۔ مگر دوستو میڈیا نے جہاد شبد کو اتنا بدنام کر دیا ہے کہ غیر مسلمان تو دور کی بات، خود مسلمان بھی آج یہ سمجھتا ہے کہ کافروں کو مارنا ہی جہاد ہے۔ چلیے اب آتے ہیں اس آیت پر جو اسلام دھرم کو بدنام کرنے کے لیے سب سے زیادہ استعمال کی گئی، سورہ توبہ کی آیت نمبر 5۔ چلیے میں آپ کو یہ آیت قرآن میں لائیو دکھاتا ہوں۔ یہ ہے ہندی بھاشا میں قرآن، عربی یا اردو میں دکھاتا تو اپنے غیر مسلم بھائیوں کو سمجھ میں نہیں آتا۔ یہ قرآن کے 114 چیپٹرز ہیں۔ ہمارا پوائنٹ ہے سورہ توبہ کی آیت نمبر 5۔ یہ ہے سورہ توبہ۔ ہم آیت نمبر 5 پڑھتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ کیا واقعی میں قرآن میں کافروں کو مارنے کے لیے کہا گیا ہے۔ یہ آیت نمبر 1، یہ آیت نمبر 2، یہ آیت نمبر 3، یہ آیت نمبر 4 اور یہ رہی آیت نمبر 5۔ ہم آیت نمبر 5 پڑھنا شروع کرتے ہیں۔ اور جب حرام کے مہینے گزر جائیں تو مشرکوں کو جہاں پاؤ قتل کرو اور ان کو پکڑو اور ان کا گھیراؤ کرو اور ان کے پکڑنے کو ہر گھات میں بیٹھو۔ پھر اگر وہ توبہ کریں اور نماز پڑھنے لگیں اور زکوٰۃ دینے لگے تو ان کا راستہ چھوڑ دو، اللہ تعالیٰ بخشنے والا مہربان ہے۔ تو میں نے آیت نمبر 5 پڑھ دی، پتہ چلا کہ سچ میں قرآن کی اس آیت میں لکھا ہے کہ کافروں کو جہاں پاؤ وہیں مارو۔ مگر ہمیں یہ بھی تو سوچنا چاہیے کہ سورہ توبہ میں صرف یہ آیت نمبر 5 ہی تھوڑی ہے، اس سے پہلے بھی 4 آیتیں ہیں اور اس کے بعد بھی کئی آیتیں ہیں۔ ان آیتوں کو بھی تو پڑھ کے دیکھنا چاہیے تاکہ پتہ تو چلے کہ بات کس وشے پر چل رہی ہے۔ چلیے آیت 1 سے پڑھتے ہیں۔ یہ ہے آیت نمبر 1۔ یہاں اللہ تعالیٰ مسلمانوں سے کہتے ہیں کہ مسلمانوں
जिन मुशरिकों से तुमने अमन के वादे किए यानी शांति का समझौता किया था, अल्लाह और उसके रसूल उनकी वादा खिलाफी की वजह से उनसे बेजार हैं यानी उनसे फ्री हैं। बस उनसे कह दो कि 4 महीनों तक मक्का की जमीन पर चल फिर लो, फिर इसके बाद कूच, और जान रखो कि तुम अल्लाह को आजिज नहीं कर सकते और अल्लाह को काफिरों को रुसवा करना मंजूर है। आयत नंबर 3, और हज अकबर के रोज अल्लाह और उसके रसूल की तरफ से तमाम लोगों को ऐलान किया जाता है कि अल्लाह और उसका रसूल मुशरिकों से बेजार है, और अगर तौबा करो तो तुम्हारे हक में बेहतर है, और अगर मुंह मोड़ते रहोगे तो जान रखो कि तुम अल्लाह को अहकाम नियम कानून लागू करने से आजिज नहीं कर सकते, नहीं रोक सकते। और तू यानी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तू काफिरों को दर्दनाक अजाब की खबर सुना दे। ये आयत नंबर 4। ये आयत ध्यान से सुनना। लेकिन जिन मुशरिकों से तुमने कोल करार किया यानी शांति समझौता किया, और उन्होंने यानी काफिरों ने उसमें किसी प्रकार की कमी नहीं की और न उन्होंने तुम्हारे खिलाफ किसी की सहायता की, यानी काफिरों और मुसलमानों के बीच जो शांति समझौता हुआ तो उसमें काफिरों की तरफ से कोई गड़बड़ी नहीं की गई और ना ही उन्होंने मुसलमानों के खिलाफ किसी दूसरे गिरोह की सहायता की। तब अल्लाह ताला मुसलमानों से यहाँ कहता है तो उनके वादों को मुकर्रर मुद्दत तक पूरा करो, यानी जब तक वो समझौता हुआ है, जितने समय तक वो समझौता हुआ है तुम भी उस समय तक उनसे वो समझौता कायम रखो और समझौता तोड़ने से परहेज करते रहो, यानी समझौता नहीं तोड़ना। बेशक अल्लाह ताला परहेजगारों से प्रेम करता है। तो दोस्तों मैंने आयत 5 से पहले की 4 आयतें पढ़ी, जिनको पढ़ने से पता चल रहा है कि यहाँ किसी शांति समझौते की बात चल रही है। आइए देखते हैं कि इस समझौते की हिस्ट्री क्या है। इस पैराग्राफ में बताया गया है कि इस सूरह से पहले बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम क्यों नहीं पढ़ी जाती और ये सूरह क्यों अल्लाह ने नाजिल की। हमारा पॉइंट शुरू होता है यहाँ से। मक्का के काफिरों ने अंतिम मुआहदा यानी जो शांति का समझौता हुआ था, सुलह हुदैबिया भी तोड़ा था। उसमें ये तय पाया गया था कि एक तरफ मुसलमान और उनके सहयोगी कबीले होंगे और दूसरी ओर कुरैश, ये कुरैश काफिर थे, और कुरैश और उनके सहयोगी। मुसलमानों के साथ कबीला खुजाआ शामिल होगा और कुरैश यानी काफिरों के साथ कबीला बनु बिक्र। सुलह की यानी समझौते की बुनियादी शर्त यह थी कि 10 वर्षों तक दोनों पार्टियां इस समझौते पर कायम रहते हुए एक दूसरे पर आक्रमण नहीं करेंगी। लेकिन अभी 2 वर्ष ही का समय बीता था कि बनु बिक्र ने कबीला खुजाआ, यानी बनु बिक्र कौन था? काफिरों के साथ वाला कबीला, जिसने कबीला खुजाआ यानी मुसलमानों के साथ वाले कबीले पर हमला बोल दिया और कुरैश ने यानी काफिरों ने भी उनका साथ दिया। बनु खुजाआ ने भागकर काबा में जान बचाई, मगर वहां भी उन्हें कत्ल किया गया। केवल 40 आदमियों ने किसी तरह जान बचाई और मदीना पहुंचकर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सूचना पहुंचाई। कबीला बिक्र का कबीला खुजाआ पर आक्रमण करना और कुरैश का उनका साथ देना, यह मुआहदे यानी शांति समझौते का खुल्लम खुल्ला उल्लंघन था। इस पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का यह फर्ज, यह कर्तव्य बनता था कि इस उल्लंघन को बर्दाश्त न किया जाए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी 10,000 सहाबाओं को लेकर मक्का पर चढ़ाई कर दी, यानी जंग के लिए तैयार हो गए और छोटी मोटी झड़पों को छोड़कर बिना किसी जंग के मक्का फतेह हो गया। तो दोस्तों इन 4 आयतों और इसकी हिस्ट्री से हमें ये मालूम होता है कि मुसलमानों और काफिरों के बीच एक शांति समझौता हुआ था जो कि 10 साल का था, मगर 2 साल में ही काफिरों ने उस शांति समझौते का उल्लंघन किया, जिसकी वजह से मुसलमानों ने उनको सबक सिखाना चाहा, जिसके लिए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 10,000 सैनिकों को उन काफिरों को सबक सिखाने के लिए भेजा। अब यहाँ पर जब जंग का माहौल हुआ, जंग का मैदान आया, तब अल्लाह ताला आयत नंबर 5 में फरमाता है कि जब हराम के महीने गुजर जाएं तो मुशरिकों को जहाँ पाओ वहीं कत्ल करो, यानी जंग के मैदान पे आप दुश्मनों को जब पाओ तो वहाँ उनको कत्ल करो, ताकि दुनिया में अमन व शांति का माहौल हो, और उनको पकड़ो और उनका घेराव करो और उनके पकड़ने को हर घात में बैठो। फिर अगर वह शरारत से तौबा करें यानी माफी मांग ले और नमाज पढ़ने लगे और ज़कात देने लगे तो उनका रास्ता छोड़ दो।
क्योंकि अल्लाह ताला बख्शने वाला मेहरबान है। अब काफिरों के लिए यहाँ एक रास्ता है कि वो इस्लाम धर्म अपना लें, तब तो मुसलमान उन्हें छोड़ देंगे। अब दोस्तों यहाँ ये मत सोच लेना कि काफिरों को जबरदस्ती इस्लाम कबूल कराया जाएगा फिर उन्हें छोड़ा जाएगा। नहीं, ये उन पर डिपेंड करता है कि अगर वो चाहें तो इस्लाम कबूल करके भी जंग से अलग हो सकते हैं, और अगर सिर्फ शांति से रहना चाहते हैं तो भी जंग से अलग हो सकते हैं। किसी को जबरदस्ती इस्लाम कबूल कराना इस्लाम में सख्त मना किया गया है। अल्लाह ताला खुद कुरान में कहता है कि इस्लाम में जोर जबरदस्ती नहीं की जाएगी। देखिए यहाँ सूरह बकरा की आयत नंबर 256 में अल्लाह ताला कहता है कि दीन यानी इस्लाम में जोर जबरदस्ती नहीं है, यानी ताकत और बल के प्रयोग से आप किसी को मुसलमान ना बनाओ। एक तो रास्ता ये है, और दूसरा रास्ता बहुत ही बेहतरीन रास्ता अल्लाह ताला ने कुरान में बताया, जो कि आगे आयत नंबर 6 में है। लिखा है कि और अगर कोई मुशरिक या काफिर जंग की हालत में भी तुमसे अमन यानी शांति मांगे तो उसको पनाह दिया करो कि वह मुसलमानों के मेल मिलाप से कुरान सुने, और फिर जब वह जाना चाहे तो अमन की जगह पर उसको पहुंचा दिया करो। यहाँ अल्लाह ताला सीधे सीधे फरमा रहा है कि अगर जंग हो रही है और कोई दुश्मन काफिर तुमसे ये कहे कि भाई मुझे आपका कुरान सुनना है, मुझे जानना है कि आपके कुरान में क्या लिखा है, तो मुसलमानों का ये फर्ज बनता है कि उसको कुरान सुनाए। और जब वो काफिर ये कह दे कि ठीक है भाई मैंने कुरान सुन लिया, अब मैं जाना चाहता हूँ, तो ये नहीं कि मुसलमानों से ये कह दें कि ठीक है भाई जाओ अपने घर, नहीं, बल्कि अल्लाह ताला ने मुसलमानों को ये हुक्म दिया बल्कि तुम खुद जाकर उसके सुरक्षित स्थान पर उसको छोड़ के आओ। दुनिया की किसी जंग में, किसी युद्ध में ऐसी मिसाल नहीं हो सकती। दोस्तों अब यहाँ साफ हो रहा है कि सूरह तौबा की आयत नंबर 5 में अल्लाह आम गैर मुसलमानों को मारने के लिए नहीं कह रहा, बल्कि यहाँ तो जंग का माहौल है। जंग के मैदान में अल्लाह ताला कहता है कि दुश्मनों को मारो। मान लीजिए अगर भारत पाकिस्तान का युद्ध हो जाए और पाकिस्तान भारत के सैनिकों पर गोलाबारी करे, उनको मारे, तो क्या भारत के सैनिक मिठाई का डब्बा लेकर पाकिस्तान के सैनिकों को पप्पियां झप्पियां करेंगे? बिल्कुल नहीं। भारत के सैनिक हिम्मत और जोश के साथ पाकिस्तान के सैनिकों को मुंह तोड़ जवाब देंगे और उनको कत्ल करेंगे। अब इस चीज को लेकर कि भारत ने पाकिस्तान के सैनिकों को कत्ल किया, इसलिए भारत एक आतंकवादी देश है, क्या दुनिया के देश ये कहेंगे? नहीं, बिल्कुल नहीं भाई। यहाँ तो युद्ध चल रहा है, युद्ध में तो अपने दुश्मन को मारना ही होता है। दोस्तों यही इस आयत में कहा जा रहा है कि युद्ध में तुम अपने दुश्मनों को घात लगाकर मारो। दोस्तों इसी तरह कुरान में काफिरों को मारने से रिलेटेड कई आयतें तो हैं, मगर वो आयतें जंग के मैदान में दुश्मन को मारने से रिलेटेड हैं। दोस्तों जिस प्रकार महाभारत में युद्ध की बातें की गई हैं, युद्ध के बारे में वर्णन किया गया है, उसी प्रकार कुरान में भी युद्ध के जंगों के बारे में बताया गया है। हम जानते हैं कि महाभारत में जो युद्ध हुआ वो अच्छाई और बुराई के बीच था, और कुरान में जो जंग या जो युद्ध बताया गया है वो भी अच्छाई और बुराई के बीच है। एक आम नागरिक जो मुसलमान नहीं है उसको बिना वजह मारने का कुरान में कहीं नहीं लिखा। चैलेंज है मेरा, दुनिया का कोई भी व्यक्ति दिखा दे कि कुरान में एक आम मासूम इंसान को बिना वजह मारने को कहा गया है। कुरान में तो लिखा है कि जिसने एक बेगुनाह इंसान की जान बचाई तो उसने पूरी इंसानियत को बचा लिया, और जिसने एक भी बेगुनाह इंसान की जान ली उसको मारा तो उसने पूरी इंसानियत को मारने का पाप किया। यहाँ अल्लाह इंसानों की बात कर रहा है, ना कि सिर्फ मुसलमानों की। अब मैं गैर मुसलमानों से कहना चाहूँगा, खासकर हिंदू भाइयों से, कि आप इस्लाम के प्रति बहुत बड़ी गलत फहमी में दब गए हैं। आप जब तक खुद कुरान को नहीं पढ़ेंगे तो लोग आपका इस्तेमाल करते रहेंगे। राजनीतिक पार्टियां, नफरत फैलाने वाले संगठन आपको अपने फायदे के लिए इस्तेमाल करते रहेंगे। किसी इस्लामिक बुक स्टोर पर जाइए, एक हिंदी वाले कुरान खरीदिए और पढ़िए। कुछ समझ में ना आए तो अपने मुस्लिम दोस्त से या पास के किसी मस्जिद के किसी मौलाना से संपर्क करिए। जब तक यूट्यूब की वीडियोस को जो खास प्रोपेगेंडे के तहत बनाई जाती हैं उनको देखते रहेंगे तो कभी अंधेरे से बाहर नहीं निकल पाओगे। जैसा कि दोस्तों मैंने वीडियो की शुरुआत में कहा था कि अक्सर हिंदुओं को लगता है कि कुरान काफिरों को मारने का हुक्म देता है, और काफिर का मतलब हिंदू लोग होते हैं।
चलिए देखते हैं कि काफिर का क्या मतलब होता है। काफिर एक अरबी भाषा का शब्द है जिसका मतलब होता है इनकार करने वाला, मना करने वाला, झुठला देने वाला। इस्लाम के नजरिए से काफिर वो व्यक्ति होगा जो इस्लाम की सत्यता का इनकार कर दे, यानी वो ये कह दे कि भाई मैं इस्लाम को नहीं मानता, तो हम उसे अरबी भाषा में काफिर कहेंगे। इसी को हिंदी में ए मुस्लिम यानी जो मुसलमान नहीं है, उर्दू में गैर मुस्लिम यानी जो मुसलमान नहीं है, और अंग्रेजी में नॉन मुस्लिम यानी जो मुसलमान नहीं है, ये सब कहेंगे। यानी सीधे लफ्जों में जो व्यक्ति मुसलमान नहीं है उसे अरबी भाषा में काफिर कहा जाता है। अब चूंकि कुरान अरबी भाषा में है, इसलिए जो मुसलमान नहीं है उसे काफिर शब्द से पुकारा गया है। हिंदू धर्म में देखें, या तो कोई व्यक्ति हिंदू होगा या नहीं होगा। अब जो व्यक्ति हिंदू नहीं होगा उसको नास्तिक, अधर्मी, दस्यु, मलिच्छ, उर्दू में गैर हिंदू, इंग्लिश में नॉन हिंदू, इन शब्दों से संबोधित किया जाएगा। तो काफिर शब्द कोई गाली नहीं है, बल्कि इसे गाली बनाया गया है मीडिया के द्वारा। सबको पता है आज भारत में क्या चल रहा है। हिंदू भाई भारत को हिंदू राष्ट्र बनाने के चक्कर में मुसलमानों से इस कदर नफरत करने लगे हैं कि इनको सच और झूठ में कोई फर्क नजर नहीं आता। आज मीडिया और नफरत फैलाने वाले संगठनों ने हमारे समाज में ऐसा जहर घोल दिया है कि लोग एक दूसरे के धर्म को बदनाम करने का एक भी मौका नहीं छोड़ते। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें, और भी ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब जरूर करें और इस घंटे को भी दबाएं, ताकि जब भी हम कोई नई वीडियो डालें तो उसका नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच जाए।